Okay, so hi, hello, good evening, everyone. This is Ritika, your chemistry educator, and we are back here at An Academy's YouTube sessions. And today we are going to do a very important session which has been requested by many students, that is balancing the equations. So all the students who have entered the grade 9, or maybe also the students of grade 10, many a times what happens is we face some of the confusion, some of the problem in balancing the equation, right? तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू लर्न कि ये जो हमारी इक्वेशंस है उसे कैसे हम लोग बैलेंस करें, व्हाट आर द रूल्स, व्हाट आर द टिप्स, व्हाट आर द ट्रिक्स दैट कैन बी फॉलोड टू बैलेंस एनी सर्टेन केमिकल इक्वेशन. ओके, so talking about myself, I have completed my engineering in electronics and communication and have been awarded grade A by Cambridge English ESL. And talking about the Telegram channel, so students, you can join our Telegram channel if you want to stay updated. तो यहाँ पर ना आपको डेली अपडेट्स मिल जाएंगे about all the classes which are going on, okay, and all the offers which are going on. तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल टू रिसीव द नोट्स एंड हेल्प इन होमवर्क. एंड नेक्स्ट इज द टेलीग्राम चैनल ऑफ अन अकेडमी. तो ये ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है. In order to receive regular updates about what all is going on here, you can join this channel. So, balancing is a very important part, first of all, in chemistry, right? Grade 8, 9 से ये start होता है and then it continues. Okay, so it's not that सिर्फ grade 9 के लिए balancing important है, it is for grade 10, 11, 12 and so on. Okay, now before learning on what do we mean by or how to go for balancing equations, we will learn today कि क्या मीनिंग होता है केमिकल इक्वेशन का. ओके, तो लेट्स बिगिन और लेट अस स्टार्ट विद द वर्ड केमिकल इक्वेशन. ओके, तो इफ आई टॉक अबाउट केमिकल इक्वेशन, ये क्या होता है? हम लोगों ने सिंबल्स पढ़े, वी लर्न अबाउट द फॉर्मूला, राइट? या, सो व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन? It is the symbolic representation. और किसका symbolic representation है ये? Of chemical reaction. Okay, मतलब कि ये जो हमारी chemical equation है, in this we are using the symbols and we are using the formula and we are representing a chemical reaction. Okay. So basically we are using what? We are using symbols and formula. Okay, सारे substances जो भी involved है हमारे reaction में, this is the equation or this is the representation of that particular thing. Okay, अभी अगर मैं एक simple सा example लूँ कि I'm talking about carbon, I'm talking about oxygen, वो दोनों ना क्या हो रहा है? दे आर बर्निंग. ओके, और दे आर, इफ आई टॉक अबाउट कार्बन, इट इज बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो या तो मैं इसको पूरा इस तरह से लिखूं दैट कार्बन इट इज बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, या फिर आई कैन राइट this. Okay, अब if I talk about the very first method, अगर हम इस मेथड की बात करें तो what are the drawbacks of this method? सबसे पहले तो लॉन्ग मेथड है, tedious है, टाइम टेकिंग है, स्पेस टेकिंग है, राइट? एंड इसमें ये वापस से नहीं पता पड़ रहा है दैट हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन. चलो कार्बन का तो हमने मान लिया 1. ओके, ऑक्सीजन का इट इज O2, okay, in the molecule. So that information is also not being provided over here. Okay, तो इस वजह से what are we going to follow? We are preferring to follow chemical equation.
ओके, सो आई होप दैट दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू. अब सबसे पहले तो वी शुड बी लर्निंग कि क्या स्टेप्स है दैट वी नीड टू फॉलो व्हाइल राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन. उसके बाद बात आती है बैलेंसिंग की. सो द फर्स्ट टॉपिक इज स्टेप्स टू राइट chemical equation. Okay, now सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वी विल बी राइटिंग द सिंबल. सबसे पहले तो सिंबल यू शुड बी नोइंग, राइट? सिंबल एंड फॉर्मूला आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर I'm sorry, before we are writing any chemical equation or before we are balancing. Okay, तो सबसे पहले क्या करेंगे, we will be writing the symbol या फिर फॉर्मूले ऑफ रिएक्टेंट. तो रिएक्टेंट का जो भी सिंबल और फॉर्मूला है वो लगता है ऑन दी लेफ्ट साइड. ओके, उसके बाद आता है द सिंबल और फॉर्मूले ऑफ प्रोडक्ट. अभी प्रोडक्ट का जो भी सिंबल या फॉर्मूला है इट कम्स ऑन दी राइट साइड. ओके, अभी क्या होगा, इन दोनों के बीच में वी विल बी हैविंग एन एरो साइन. सो पुट एन एरो बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. ओके, एंड नेक्स्ट है कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट देम इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्म. ओके, तो ये हमारी कुछ स्टेप्स है टू राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन. करेक्ट? तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है दैट हाउ आर वी गोइंग टू राइट अ केमिकल इक्वेशन, है ना. नेक्स्ट, इफ आई गिव यू एग्जाम्पल, तो सबसे पहले बहुत ही इजी सा एग्जाम्पल लेते हैं. इफ यू आर राइटिंग द इक्वेशन इन द नॉर्मल फॉर्म, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, वी विल बी राइटिंग दैट वी आर टेकिंग सोडियम, इट रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन. अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो इट इज टाइम कंज्यूमिंग, इट इज स्पेस कंज्यूमिंग. सेकेंड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन, वी डू नॉट नो द फॉर्मूला एंड हेंस हमें नहीं पता पड़ेगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, एंड वी विल नेवर बी एबल टू बैलेंस इट. इसी जगह इफ आई राइट सोडियम reacts with water और ये बना रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन. तो अभी आई कैन काउंट एंड सी कि हमारे पास जो ये एटम्स हैं वो क्या नंबर में है. ओके, और उनको किस तरह से बैलेंस करना है. ओके, तो यहाँ पर द compounds or the components which are present on the left hand side, they are reactants. Reactants क्या होता है, these tell कि क्या क्या चीजें मिल रही है for the reaction. Okay, and these are the products. Okay, so we have reactants on the left hand side, we have products on the right hand side, we've got arrow in between. Okay, now if I talk about a chemical reaction, here we can have different type of things. या तो it could be possible कि हमारे पास one reactant है and two or more product. एक ही reactant है जो decompose होके it is giving us maybe two or more product. It could be also two reactant है और दोनों combine होकर हमें क्या दे रहे हैं, they are giving us one product.
Okay, next it can be two reactant and two product, and it can also be two reactant and they are combining to provide us with three or more products. तो ये हो सकती है हमारी डिफरेंट टाइप की केमिकल इक्वेशंस. ओके, सो आई होप कि यहाँ तक सभी को सभी चीजें क्लियर हुई है. इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन. अब आता है नेक्स्ट डेफिनेशन. स्केलेटन इक्वेशन. तो जो इक्वेशन हम लोग नॉर्मली देखते हैं, द इक्वेशन दैट वी सी नॉर्मली, वो जिसमें बैलेंसिंग नहीं होती है, दैट इज नोन एज द स्केलेटन इक्वेशन. ओके, सो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये क्या करेगी, इट ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द केमिकल चेंज. ओके, बट ये बैलेंस नहीं होती, सो इट इज नॉट बैलेंस. गॉट इट? ओके, तो स्केलेटल इक्वेशन जैसे कि अभी हमने यहाँ पर ओके आई गेस वी हैव रिमूव्ड इट. यस, तो अभी जो हमने बात किया था जैसे कि सोडियम, इट इज कंबाइनिंग विथ वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन. ओके, so these are, or this particular equation is the skeleton equation. Why? Because it is not balanced. Okay, of course chemical change तो यहाँ हमें पता चल रहा है that सोडियम का सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, H2 का H2 बन रहा है, वाटर का H2 बन रहा है, राइट. तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी हो रहा है या केमिकल चेंज भी हो रहा है, लेकिन यहाँ इक्वेशन जो है वो हमारी बैलेंस नहीं. Okay, now we will be moving on to our main topic, which is balanced equation. First of all, let us try to understand that what is meant by balanced equation. Sorry, yeah. तो balanced मतलब होता है कि जितने number of atoms हमारे राइट हैंड साइड है उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो हमारे लेफ्ट हैंड साइड. या फिर आई कैन से कि जितने हमने रिएक्टेंट्स जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड पर प्रेजेंट है उतना ही प्रोडक्ट साइड पर प्रेजेंट हो. सो व्हाट और हाउ वी कैन डिफाइन अ बैलेंस्ड इक्वेशन? सो इट इज द इक्वेशन इन विच टोटल नंबर ऑफ एटम्स of each element in the reactant side is equal to the total number of atoms of each element in product. ओके, सोडियम 1 है रिएक्टेंट साइड पर तो प्रोडक्ट पर भी 1 होना चाहिए, हाइड्रोजन 2 है प्रोडक्ट पर भी 2 होना चाहिए, एंड दिस इज हाउ इट इज नोन एज द बैलेंस्ड इक्वेशन. ओके, इफ आई टॉक अबाउट एनी एग्जांपल, लेट्स टेक द केस ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट. तो पोटेशियम नाइट्रेट का जब डिकम्पोजिशन होता है तो इट इज फॉर्मिंग व्हाट. अब यहाँ पर देखिए पोटेशियम 1 है, यहाँ पर भी वी आर हैविंग 1, नाइट्रोजन 1 है, वी आर हैविंग 1, ऑक्सीजन 3 है, हियर वी आर हैविंग 4. तो यहाँ इक्वेशन इट इज अनबैलेंस्ड इक्वेशन. करेक्ट? व्हाई? बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन. नेक्स्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका अगर डिकम्पोजिशन होगा इट विल बी फॉर्मिंग कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, अभी सी कैल्शियम कितना है 1 and 1,
कार्बन कितना है 1 and 1 एंड ऑक्सीजन कितना है 3 and 3. So this is considered as the balanced equation. Correct? So these are the balanced and unbalanced equation. Now students, question arises, why? कोई भी जो हमारी केमिकल इक्वेशन है उसे बैलेंस करने का क्या जरूरत है? Why do we need to balance it? What is the requirement to balance any particular chemical equation? Okay. Now any equation, it needs to be balanced in order to follow the law of conservation of matter. Okay. अब what does this law of conservation of matter states? ये लॉ हमें बताता है कि जो हमारा मैटर है is neither created nor destroyed. Okay. तो अगर if you are having less or maybe more number of atoms on the right or left hand side, तो वो क्या बताएगा कि यहाँ पर मैटर या तो क्रिएट हुआ है या फिर डिस्ट्रॉय हुआ है, विच इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर. ओके, तो इसीलिए वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस, है ना. तो आई होप ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है. देयर इज एनी कंफ्यूजन, प्लीज लेट मी नो. अब बात करते हैं हाउ टू बैलेंस. Okay, the question arises how to balance a chemical equation. Now students, talking about balancing a chemical equation, हमारे पास दो बहुत ही basic method है. First is hit and trial and the second one is partial equation. Okay, so these are the two processes through which we can go for the balancing of the equations. Okay, हम लोग begin करेंगे hit and trial method से. Now hit and trial method में क्या होता है? We are just going for a trial कि क्या ये आंसर सही है. Okay, somewhat like that. So it is completed in certain steps. तो यहाँ पर क्या करेंगे? We are going to count the number of elements on both sides. और उसके बाद क्या करेंगे? We are going to try to balance it. Balance मतलब उन्हें equal करना. ओके, दिस इज द बेसिक ओवरव्यू कि हिट एंड ट्रायल मेथड होता क्या है. अब उसको कैसे आप लोग करेंगे, क्या स्टेप्स हमें फॉलो करनी है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. सबसे पहले द वेरी फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स एन एलिमेंट अकर्स on the either side. Okay, तो दोनों साइड पे देखेंगे. we are going to see कि कितने टाइम जो है एक पर्टिकुलर हमारा एलिमेंट रिपीट हो रहा है, कितने टाइम उसका फ्रीक्वेंसी है. ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू पिक अप द एलिमेंट विथ लीस्ट फ्रीक्वेंसी. सो एलिमेंट विथ लीस्ट फ्रीक्वेंसी इज बैलेंस्ड first. करेक्ट. तो जो एटम, जो एलिमेंट सबसे कम टाइम, लेट्स सपोज हाइड्रोजन आ रहा है 5 टाइम, ऑक्सीजन आ रहा है 2 टाइम, तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे. नेक्स्ट आता है व्हेन 2 or more elements
have the same frequency the metallic element is valence force. ओके तो लेट्स सपोज हमारे पास हाइड्रोजन है, क्लोरीन है और सोडियम है, तीनों आ रहे हैं 3 टाइम्स, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वी विल बी बैलेंसिंग दी सोडियम फॉर द वेरी फर्स्ट. व्हाई? Why? Because it is metallic element. Okay, so this is what happens, or these are what are the rules of writing or balancing the chemical equation. अभी हम लोग क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे and I'm very sure you will get everything. चलो, before moving on to questions, let me tell you about the special classes. तो स्पेशल क्लासेस के लिए यू नीड टू हैव द अनअकैडमी लर्नर ऐप स्टूडेंट्स. ओके, एंड over there you can learn from your favorite educators. You can engage with your educators via polls. So polls क्या होता है ना, these are MCQ type of questions which are asked by the educators and you can select your answers. Okay, next is you can also clear your doubt in your live special classes. So if you want to attend the special classes, you can visit the links which are provided in the description box. Next is Unacademy subscription feature. So Unacademy को subscribe क्यों करना है? There are certain amazing reasons for that. So first of all, you can learn, you can live at your comfort zone and you can learn from there. Then आपको सारे courses का access मिलेगा. Will be taught by top educators of India, and also normal sessions के अलावा हमारे पास regularly doubt clearing session और answer writing session रहेंगे. Okay, plus all the study material will be provided to you in the PDF format. You'll be having live test series, etc., etc. Okay, so these are the subscription plans. You can select any subscription plan according to your choice. It could be 3 months, it could be 6, 9, 24, etc. Okay, तो आप लोग select करिए. Then you can use my code also, जो कि आपको देगा flat 10%. तो for example 48 month पे जहाँ 958 per month price होगा, वहाँ using the code you will get 863 per month. ओके, तो चलिए यहाँ से ना कुछ बैलेंसिंग ट्राई करते हैं. वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है, इट इज this is our first chemical equation. अभी as I told you students, hit and trial method में we have to follow certain steps. तो we'll be following those steps and then we'll be seeing कि कैसे equation हमारी balance होती है. Okay, so let's see what are the elements present. It is copper, sulfuric acid which gives copper sulfate, sulfur dioxide and water. सबसे पहले क्या करेंगे, we are going to write reactant and product. अब देखो, कॉपर है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है. कॉपर कितनी टाइम आ रहा है? 1 and 1. हाइड्रोजन इट इज 2 और यहाँ पर भी इट इज 2. सल्फर इट इज 1, 2 and here it is 1. and ऑक्सीजन कितना है? 4 या 4, 5, 6, 7. तो ये जो है हमारी अनबैलेंस्ड या फिर स्केलेटन इक्वेशन. अब इसको बैलेंस कैसे करने का है? तो सबसे पहले क्या करना है, कॉपर और हाइड्रोजन तो ऑलरेडी बैलेंस है ना. तो यहाँ पर क्या करेंगे, सल्फर को इक्वल करना स्टार्ट करेंगे. तो अभी सल्फर यहाँ पर एक ही जगह प्रेजेंट है, तो जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 2 और हमारे पास क्या हो गया, इक्वल हो गया. अब हो गया डिस्टर्ब हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गया यहाँ पर
और इसको 4 करना, अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर दो, so it will be 4 and 4. है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू काउंट. कॉपर 1 1, हाइड्रोजन 4 4, ऑक्सीजन 8. अब यहाँ पर हमारे पास कितना है, 4 5 6 and 7. अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे, so this 2 it is multiplying with sulfur also and oxygen also, so therefore we are having 8 oxygen. और यहाँ कितना बच गया, it is 4 5 6 and 7 8. तो चलो हमारे तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए. 1 minute. Yes. Okay, now we'll just count the number of atoms on each side, students, to see कि जो भी हमारे equations है, is it balanced or not. कॉपर देखिए दोनों साइड 1 and 1 है. सल्फर हमारे पास 2 and 1 2 है. ऑक्सीजन हमारे पास 8 4 5 6 and 7 8 है. And क्या बचा है, हाइड्रोजन it is 4 and here we are having 4. Yes, so this is the balanced equation. Okay, it is 8 and 8. चलो आया सभी को समझ. This is very easy and really very simple method of balancing the chemical equations. Okay, चलिए next example try करते हैं. It is तो ये हो गई हमारी skeletal equation. Now again, what are we going to do? We are going to write the reactant and the product. तो reactant साइड कितना है हमारा, ये देखो आर्सेनिक है, क्लोरीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. अभी आर्सेनिक को काउंट करेंगे तो बहुत इजी, AS2 है, यहाँ पर 2 ऐड कर लो, दोनों हो गए. नेक्स्ट इनकी बात करें 1 and here we are having 2, तो अगेन 2 से मल्टीप्लाई करो तो इट विल बी just a minute students. Yeah. So इसके बाद हम लोग टिन की बात करेंगे. तो टिन दोनों साइड ना इक्वल है, इट इज 1 over here and 1 over here. ओके, नेक्स्ट बात करेंगे ऑक्सीजन की. तो ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो इसको 3 बनाने का एक ही तरीका है, तो इट इज 3H2. अब इसकी वजह से क्या हुआ, हाइड्रोजन देखो यहाँ पर 1 है and here what are we having, we are having 3 and into 2 6 हाइड्रोजन. ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, हाइड्रोजन भी 6 हो गए. क्लोरीन कितना है 6, यहाँ पर हमारे पास कितना है 4, यहाँ हमारे पास 2 मोर है तो 8 हो जाएंगे. ओके, तो चलो 1 minute, लेट अस डू अप टिल हियर. तो यहाँ तक तो हमारी इक्वेशन में बहुत सारी चीजें हो गई है बैलेंस. ओके, तो HCl को भी हम लोगों ने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 3. तो इससे क्या हुआ, हमारा क्लोरीन जो है इक्वलाइज हो गया. 3 into 4 12, 3 into 2 6 plus 6. दिस इज बैलेंस्ड. ओके, अब बात करें हाइड्रोजन, इट इज 6 and 6 डन. Oxygen is 3 plus 3. It is balanced. Okay, so this is how we balance the chemical equation. Okay, तो first of all reactant लिखो, product लिखो, उनका number लिखो, frequency of occurrence लिखो, and then follow all these rules in order to have the
balanced chemical equation. Let's do one more. So it is Fe plus H2O. It gives Fe2O3 dot H2. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगेन राइट Fe, we are having H, we are having O, we are having product, we are having reactant. आयरन कितना है 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सो इट्स बोथ द साइड्स 2. ऑक्सीजन 3 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू ओके जस्ट अ मिनट, यस, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन सॉरी यहाँ ऑक्सीजन इट हैज कम 3. अभी यहाँ देखो 3H2O मतलब 6 है हमारे पास, एंड यहाँ पर 1 है, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सो इट इज गोइंग टू बी 6 and 6. Okay, so this becomes our balanced equation. I hope that यहाँ तक कोई confusion, कोई problem नहीं है. If there is anything, please let me know. Okay, now students क्या होता है, many a times आपको directly symbolic form में equation मिल जाएगी, but there can be times जहाँ पर you will be given the word equation. तो वहाँ you should be knowing the formula of the compounds. Okay, तो for example आपके पास question आ गया that potassium dichromate reacts with hydrochloric acid to produce potassium chloride, water and chlorine. तो ये हो गया हमारा इक्वेशन, सॉरी वर्ड इक्वेशन. ओके, सबसे पहले तो इसको क्या करना है, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सिंबॉलिक फॉर्म, which of course will be the skeletal equation. तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए. It is 1 minute K2Cr2O7. उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, प्रोड्यूस क्या कर रहा है, पोटेशियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस क्लोरीन. Okay, I'm sorry. Yeah, it is producing potassium chloride, water, chlorine and chromium chloride. So the whole equation chromium chloride होता है CrCl3. तो ये हो गई हमारी symbolic equation बोलो चाहे unbalanced या skeletal equation बोलो. Okay, so I'll just write the equation again here. It is K2Cr2O7 plus HCl. It is giving KCl, CrCl3 plus H2O plus Cl2. Okay, same equation, same method follow करेंगे. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोगों को सबसे पहले देखना पड़ेगा व्हाट आर दी एलिमेंट्स और कितने टाइम वो अकर हो रहे हैं. तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, सिंपल सा है. ऑक्सीजन यहाँ अकर हो रहा है 7 टाइम और यहाँ हो रहा है 1 टाइम. तो इसको हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करते हैं. ऑक्सीजन का काम खत्म. अब बात करो हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पर एक ही जगह आ रहा है 14 टाइम्स, तो इसको भी कर दो 14 से मल्टीप्लाई. अब देखो क्लोरीन कितने टाइम आ रहा है, इधर 14 टाइम, इधर 2, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई क्लोरीन बाय 7 into 2 14. ओके, अब देखो क्रोमियम 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो. ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वी आर हैविंग 2CrCl3 दैट इज क्रोमियम क्लोराइड. अब यहां पर देखो स्टूडेंट्स व्हाट इज गेटिंग डिस्टर्ब. सबसे पहले पोटेशियम की बात करें
तो यहाँ पोटेशियम 2 है, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो. ओके, एंड नाउ हियर सी हमारे पास क्लोरीन है 14, यहाँ है 2, 3 इंटू 2 6, 7 8 हो गया. ओके, अब हमें कितना चाहिए? वी हैव टू गो फॉर 14. अभी इसको 7 देखें तो ये डायरेक्टली 14 कर रहा है, राइट? सो वी हैव टू ऑल्टर दिस. तो अगर हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं बाय 3, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6. तो 8 प्लस 6 कितना हुआ? 14. तो ये हमारी इक्वेशन हो गई बैलेंस. चेक कर लेंगे. 2 पोटेशियम, 2 पोटेशियम, 2 क्रोमियम, 2 क्रोमियम, ऑक्सीजन 7, यहाँ 7 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इज 14, यहाँ 7 into 2 14, एंड क्लोरीन इज 14, तो यहाँ 2 plus 6 8 plus 6 14. So this is how we can balance the chemical equations. Okay, एक और chemical equation balance करेंगे. Same, we will be given this in the form of the word equation. Okay, तो हमारी जो question है it is ammonia, calcium chloride, and water are obtained by heating a mixture of ammonium chloride and calcium hydroxide. ओके, तो ये हमारी वर्ड इक्वेशन है. इसे हम लोगों को कन्वर्ट करना है इन द सिंबॉलिक फॉर्म. तो चलिए ट्राई करते हैं. सबसे पहले हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl. या स्टूडेंट्स, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, यहाँ पर अगर हमें सिंबल्स या फॉर्मूला नहीं पता है तो प्रॉब्लम फेस करेंगे. ओके, तो प्लीज have this grip on the formula and symbols very carefully, very you have to study them very well over and on. Okay, हाँ जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें सो इट इज Ca. अभी वैलेंस ही नहीं पता होगी तो हम लोग क्या करेंगे? CaOH कर देंगे, तो वही रॉन्ग हो जाएगा. ओके, क्या मिल रहा है हमें? अमोनिया मिल रहा है, कैल्शियम क्लोराइड मिल रहा है एंड वाटर मिल रहा है. तो ये हो गई हमारी सिंबॉलिक इक्वेशन. चलिए इससे लिखकर बैलेंस करते हैं. Okay, let's do it here. So it was NH4Cl plus CaOH whole twice. It is giving calcium chloride plus ammonia plus water. ओके, तो चलिए अब लोग बैलेंस करेंगे हम लोग. तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो क्लोरीन हमारे पास 1 है और यहाँ 2 है. बहुत इजीली बैलेंस हो जाएगा. इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया. अब देखो नाइट्रोजन कितना बड़ा, 2 हो गया, और यहाँ पर 1 है तो इसको भी 2 कर दिया. करेक्ट. अब देखो बात करते हैं हम लोग ऑक्सीजन की. ऑक्सीजन भी 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको जो कम लीस्ट टाइम अकर हो रहा है उनको बैलेंस करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा. ओके, कैल्शियम हमारे पास 1 and 1 है. अब हमारे पास क्या बचता है? हाइड्रोजन. देखो हाइड्रोजन इट इज 8 9 10, यहाँ पर 6 7 8 9 10. ओके, और बाकी के एलिमेंट्स हम लोग देखते हैं. नाइट्रोजन 2 टाइम्स है, नाइट्रोजन 2 टाइम्स है. हाइड्रोजन इट इज 8 टाइम्स, 2 into 4. यहाँ पर वी आर हैविंग 2 into 3 6, 2 into 2 4, 6 plus 4
10. कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 2 टाइम्स है, एंड हाइड्रोजन हम लोगों ने अभी क्लियर कर ही लिया है, क्लोरीन 2 टाइम्स है, और यहाँ पर भी क्लोरीन 2 टाइम्स। हो गई बैलेंस। ओके, सो दिस इज हाउ वी बैलेंस द इक्वेशंस यूजिंग द हिट एंड ट्रायल मेथड। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, वट एवर वी हैव लर्न टुडे। इफ नॉट, प्लीज लेट मी नो। कोई भी कंफ्यूजन, प्लीज लेट अस नो। ओके, तो इन सम अदर क्लास विल बी ऑल्सो डूइंग द पार्शियल इक्वेशन मेथड, और हम लोग इस चैप्टर को फॉरवर्ड भी लेकर जाएंगे। टॉकिंग अबाउट कम्युनिटी, तो स्टूडेंट्स कम्युनिटी इज जस्ट काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ एजुकेटर्स, और इसको ज्वाइन करने से ना आपको क्या मिलेगा, सेशन नोट्स मिलेंगे, रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे, एंड यू विल ऑल्सो बी गेटिंग द अपडेट्स अबाउट ऑल द ऑनगोइंग ऑफर्स। ओके, तो आप लोग डाउनलोड करिए अनअकैडमी लर्नर ऐप और join करिए community of your favorite educators. You will be getting the session notes, practice material, and also you can share the feedback directly to them. Okay, now these are the batches which are ongoing. grade 9 के लिए हमारे पास है guardians, which is the all subject batch. हमारे पास ये एजुकेटर्स है विच आर टेकिंग योर क्लासेस, काइंडली नोट द टाइमिंग, डेट्स, एंड अगर आपको डिटेल सिलेबस चाहिए कि क्या पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी लर्नर ऐप, एंड देयर यू कैन सी इट। एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, इफ यू आर गोइंग टू सब्सक्राइब फॉर ग्रेड 9, आपको मिलेगा ग्रेड 10, 11 एंड 12 का सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री। ओके, एंड नेक्स्ट इज बग्स बाउंटी। सो ये एक अपॉर्चुनिटी है सारे लर्नर्स के लिए। अगर आपको कुछ भी इनअप्रोप्रिएट लगता है या कुछ भी गलत लगता है, you can report it, and also you can claim your prize. Okay, there is this form provided in the description box that you can use and you can go for it. So I hope आपको सब कुछ समझ में आया हो. There is anything that you haven't understood, you could please let us know. And if you haven't still subscribed, जल्दी से subscribe कर लो यार. And like if you like the video, share it to maximum number of students. And wait for the next class. So we'll be meeting in the next class. तब तक के लिए keep studying, keep learning. All the very best. Take care. Bye everyone.